So the chapter which we'll finish today is its name is Reach for the Top, which is the story of Santosh Yadav. Clear, everybody? Okay. So before we read, we have to think about few things. Think for a while and make a list of 3 to 5 persons you idolize or admire very much for their achievements. Your idols may be from any sphere of life: sports, medicine, media, or art and culture. Do you have any inspiration? Do you look up to someone? Do you look up to someone? Anybody that you think that person has done well and you idolize or you admire that person? Yes. Ratan Tata. Good. So it can be from any field. Okay, maybe from culture and art, maybe from medicine, maybe some athlete, maybe some cricketer, but they are achievements because they have struggled a lot and that's how they have reached to the top, and now we admire them, we want to be like them, right? So we take inspiration. So it's a story about such a person whose name is Santosh Yadav. Who is Santosh Yadav? The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice, was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. So that means, do you guys want me to say it in Hindi or English? How do you want it? English or Hindi? Kuch bhi? Okay. So she was born, जन्म एक ऐसे सोसाइटी में हुआ जहाँ पे बेटा अगर हुआ तो वेलकमिंग है, अगर लड़की हुआ तो फिर वेलकमिंग, ऐसा नहीं है कि कर्स है, बट देन नॉट दैट वेलकमिंग, उतना भी वेलकमिंग नहीं है जितना खुश होता अगर बेटा होता तो बहुत ज़्यादा खुश होता, उतना भी खुश नहीं होता. दैट इज़ द डिफरेंस. When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man giving her his blessing assumed that she wanted a son. But to everyone's surprise, the unborn child's grandmother, who was standing close by, told him that they did not want a son. तो जब उसकी मम्मी एक्सपेक्ट कर रही थी, मतलब जब संतोष होने वाली थी, तब एक होली मैन, डू यू नो व्हाट इज होली मैन? जैसे कोई सेंट, डू यू नो सेंट, सेज. सो वो घर के सामने आया और बोला कि तुझे तो बेटा चाहिए. लेकिन संतोष की जो ग्रैंड मदर थी, मतलब कौन? संतोष की ग्रैंड मदर, उसने क्या बोला कि नहीं, हमें बेटी ही चाहिए, हमें सन नहीं चाहिए. टू एवरीवन सरप्राइज. द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज. तो जो आया था वहाँ पे वो भी सरप्राइज हो गया, अरे सबको बेटा चाहिए, इनको बेटा नहीं चाहिए, ठीक है. Nevertheless, he gave the requested blessings, and as destiny would have it, the blessing seemed to work. तो जो भी उसने मांगा, उसके दादी ने जो भी बोला कि हमें बेटी चाहिए, तो वो होली मैन क्या बोला, ठीक है, मैं हो जाएगा तुम्हें बेटी. बट ही वॉज सरप्राइज्ड, जैसे उसने आशीर्वाद किया वैसे ही बेटी ही हुआ. सो दैट गर्ल इज नेम्ड एज संतोष. संतोष वॉज बोर्न द 6th child in a family with 5 sons. So how many siblings does she have? 5. और 5 लड़के थे. She is the 6th girl. She is the not 6th girl. She is 6th child, and who is only single girl, right? The only girl in the family. She was born in a small village, जोनीवास of रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा. कहाँ से है वो? हरियाणा से. जोनीवास, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट. रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? हरियाणा. द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष, विच मीन्स कंटेनमेंट, मीन्स संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन. संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विथ हर प्लेस इन द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ. लेकिन वो हमेशा से सेटिस्फाइड नहीं थी. जैसे ट्रेडिशनल वे में लाइफ चलता है वैसे उसको कुछ बड़ा करना था, उसको कुछ डिफरेंट करना था. शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट. तो वो अपने आप से लाइफ उसको जैसा अच्छा लगता है वैसे ही जीने लगी. She wanted that kind of life.
Where other girls or traditional Indian dresses, संतोष preferred shorts. तो जब बाकी सब लड़कियाँ चूड़ीदार पहन के घूमती थी और इंडियन अटायर पहन के घूमती थी, तब वो क्या पहन के घूमती थी? शॉर्ट्स. मतलब लाइक शी वॉज काइंड ऑफ स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी फ्रॉम द बिगनिंग. काइंड ऑफ यू कैन से टॉम बॉय. अंडरस्टूड? टॉम बॉय काइंड ऑफ एटीट्यूड. Santosh preferred shorts. Looking back, she says now, from the very beginning, I was quite determined that if I chose a correct and a rational path, the others around me had to change, not me. तो अगर वो पहले से उसका माइंडसेट ऐसा था कि अगर मैं सही रास्ते पे हूँ, कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, तो फिर बाकी सब लोग मेरे लिए चेंज होंगे. उनका पर्सपेक्टिव जैसे वो दुनिया देखते हैं, जैसे वो मुझे देख रहे हैं आज, वो चेंज होगा. लेकिन मैं चेंज नहीं होंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो रास्ते पे जा रही हूँ वो सही है, वो गलत नहीं है. Santosh's parents were affluent landowners who could afford to send their children to the best schools, even to the country's capital, New Delhi, which was quite close by. तो संतोष के जो पेरेंट्स थे, they were landowners. तो हरियाणा में क्या होता है, बहुत सारा लैंड होता है. मतलब जितना दूर आप देख सकते हो उतना दूर, जितना दूर नज़र जाता है उतना ही उनका लैंड है. ये पूरा मेरा लैंड है, ऐसा है. तो उनके लिए कोई बड़ा बात नहीं था कि दे कुड ईजिली सेंड संतोष. भेज सकते थे संतोष को कहाँ पे? अच्छे स्कूल में, बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल में भेज सकते. यहाँ तक कि दिल्ली में भी वो लोग एफोर्ड कर सकते थे दिल्ली में भेजना, विच इज़ क्वाइट नियर बाई. हरियाणा से दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है वैसे, इफ़ यू हैव बीन. ठीक है, तो वो लोग एफोर्ड कर सकते थे. बट in line with the prevailing customs in the family, Santosh had to make do with the local village school. भेज सकते थे, लेकिन जैसे उनका ट्रेडिशन चल के आ रहा है, जैसे सब लोग फॉलो कर रहे हैं, सब लोग अपने बेटियों को कहाँ पे भेजते हैं? विलेज स्कूल में, गांव के स्कूल में. तो संतोष के पापा मम्मी ने भी वही डिसीजन लिया, ठीक है जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो, उसको विलेज स्कूल में ही जाने दो. So she decided to fight the system in her own quiet way when the right moment arrived. तो संतोष भी बहुत, she is also very sharp in terms of, she also has an understanding कि अगर ठीक है मुझे बाहर, मतलब मुझे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया, लेकिन मैं भी करूँगी, जब मेरा टाइम आएगा मैं भी I will also करूँगी मैं. So she decided to fight the system in her own quiet way when the right moment arrived, and the right moment came when she turned 16. तो जब वो 16 साल की हो गई तब उसको लगा कि अभी राइट मोमेंट है. At 16 most of the girls in her village used to get married. तो वहाँ पे क्या होता है हरियाणा में, if you see, वो बहुत ऑर्थोडॉक्स है. ऑर्थोडॉक्स मतलब, हाँ, no, not exactly Brahmin. Orthodox means strict, very they are very hard, they follow very hard and fast rules. You can do this, you cannot do that. For girls there are hard and fast rules. तो अभी क्या हुआ, तो 16 ईयर्स में, 16 साल की उम्र में बच्चे लोग, जो लड़की होता है उनको दे विल गेट देम मैरिड. संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम. तो संतोष को भी उसकी मम्मी डैडी बोल रहे थे कि तुम भी शादी कर लो. बट थिंक एट द एज ऑफ 16 when you are supposed to give your intermediate, that is your 10th, right? You are getting married. How about your studies? How about your dreams? How about your achievements in life? You are just giving up your life. You are not even studying, not even achieving anything, and just getting married, which is not legal also in India anymore. You are supposed to get married. Girls are supposed to get married at the age of 21, and guys are 19 or 21 or 23. I am not too sure, 21 itself. So both should be 21. But ये तो लीगल एज नहीं है मैरिज के लिए. A marriage as early as that was the last thing on her mind. तो संतोष को पता था कि मैं तो नहीं करने वाली. She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. तो उसने मम्मी पापा को बोला कि पापा मम्मी, look, मैं शादी तब तक नहीं करूँगी जब तक मुझे प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलेगा. मतलब मुझे अभी पढ़ाई करना है. And that is the reason I don't want to get married now. She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. तो उसने क्या किया, 16 ईयर्स में जब उसको
सब लोग प्रेशराइज कर रहे थे, तब लोग उसने बोला कि देखो मुझे एजुकेशन चाहिए, विच इज़ राइट, मुझे एजुकेशन चाहिए और उसके बाद ही मैं देखूँगा, आई विल फर्स्ट फिनिश माई एजुकेशन देन ओनली आई विल थिंक अबाउट मैरिज, सो डोंट प्रेशराइज मी। और उसने एक दिल्ली में एक स्कूल में जाके शी गॉट हर सेल्फ एनरोल्ड, मतलब एडमिशन ले लिया उसने खुद से ही। When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees. तो जब उसके पेरेंट्स ने बोला कि हमें नहीं देना तुम्हारा स्कूल फीस, हम नहीं दे सकते, तुम खुद का मनमानी कर रहे हो, नहीं दूंगा, तो उसने प्लान बी का यूज़ किया। उसका ऑब्वियसली यू विल हैव प्लान बी। प्लान बी क्या है कि मैं ठीक है, आप लोग नहीं दोगे, मुझे नहीं चाहिए, मैं पार्ट टाइम जॉब कर लूँगी दिल्ली में या तो किसी कैफ़े में। पार्ट टाइम जॉब्स नाउअडेज इट्स वेरी कॉमन, सो यू कैन गो टू एनी कैफ़े और मैकडोनल्ड्स और बर्गर किंग और KFC एंड यू जस्ट वर्क फॉर आवर्स एंड यू विल गेट पेमेंट ऑन आवरली बेसिस। तो तुम पार्ट टाइम में पेमेंट भी निकाल रहे हो और वो पेमेंट से यू कैन पे फॉर द स्कूल ऑल्सो। सो दैट वॉज हर प्लान बी, दैट्स वॉट शी थॉट। Her parents then agreed to pay for her education. तो उसके पापा मम्मी ने उसके बाद वो लोग agreed, that means वो राज़ी हो गए कि ठीक है हम लोग पैसा देंगे तुम्हारे एजुकेशन के लिए। Wishing always to study a bit more and with her father slowly getting used to her urge for more education, Santosh passed the high school examination and went to Jaipur. तो अभी क्या हुआ, दिल्ली में जो स्कूल में थी वो वहाँ से अच्छे से पढ़ाई किया और हाई स्कूल पास कर लिया। और उसके पापा मम्मी भी अभी वो लोग संतोष को समझने लगे धीरे धीरे कि ठीक है ये लड़की पढ़ना चाहती है, इसको पढ़ाना चाहिए। तो अभी क्या हुआ, वो दिल्ली में थी, 12th एग्ज़ाम ख़त्म किया और उसके बाद जयपुर में चली गई। कहाँ पे, जयपुर कॉलेज में। लेट्स सी, शी जॉइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट ए रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। तो कहाँ पे ज्वाइन किया, जयपुर में महारानी कॉलेज में और कस्तूरबा हॉस्टल में उसने एनरोल, मतलब उसको एडमिशन मिलके एक रूम अलॉट भी हो गया उसका। क्लियर। संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल्स। कस्तूरबा जो हॉस्टल है वो, हैव वी हर्ड अबाउट अरावली हिल्स? अरावली हिल्स हम लोग सब पढ़े होंगे जियोग्राफी में, इट्स वेरी फेमस हिल। सो वो जो कस्तूरबा हॉस्टल है वहाँ से अरावली हिल्स एकदम दिखाई देता, मतलब एकदम फेस करके है। जो हॉस्टल यहाँ पे होगा तो अरावली हिल्स यहाँ पे है। आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर ए वाइल। तो व्हाट यूज टू हैपन, तो वो अपने रूम से देख पाती थी विलेजर्स जा रहे हैं हिल के उस साइड और धीरे धीरे वैनिश हो रहे, मतलब दिखाई नहीं दे रहे। ऑब्वियसली इफ़ यू गो it is high, right? Slowly and gradually you will become like the person vanishes. Okay, तो उसको वो सब दिखाई देता था। Suddenly vanishing after a while. One day I decided to check it out myself. I found nobody except a few mountaineers. तो जब उसने सोचा कि मैं भी जाऊंगी एक दिन, जाके देखती हूँ क्या है इसमें, vanish क्यों हो जा रहे हैं। So obviously they just take another route and they just vanishes. तो जब वो गई देखने के लिए तब उसको दिखाई दिया माउंटेनियर्स। हु आर द माउंटेनियर्स? माउंटेनियर्स वो लोग होते हैं जो माउंटेन में चढ़ाई करते हैं, दे ट्रैक। ओके, दे आर काइंड ऑफ फर्स्ट दे विल बी ट्रैकिंग एंड देन दे विल स्टार्ट दे बिकम माउंटेनियर्स। सो आई आस्क्ड इफ आई कुड जॉइन देम। तो उसने पूछा कि मैं भी आप लोगों को ज्वाइन कर सकती हूँ। टू माई प्लेजेंट सरप्राइज they answered in affirmative and motivated me to take to climbing. तो उसने जब पूछा कि मैं भी आप लोगों के साथ ज्वाइन कर लूँ, तो उसने वो माउंटेनियर्स ने क्या बोला, यूजुअली वो लोग बोलते हैं कि नहीं तुम कौन हो, हम आई डोंट नो यू, वी डोंट नो यू। लेकिन उस दिन उसको बोला कि ठीक है यू कैन ज्वाइन, चलो क्लाइंब शुरू करो। देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटर्मिन्ड यंग गर्ल। तो वो जब वो शुरू की एक बार, उसके बाद वो पीछे मुड़ के नहीं देखी कभी, बिकॉज दैट वॉज हर डिटर्मिनेशन, उसका विल पावर था इतना। शी सेव्ड मनी
and enrolled in a course at Uttarakhand's Nehru Institute of Mountaineering, which is very famous. Nehru Institute of Mountaineering, जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो ट्रैक करते हैं, उनके लिए नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग इज़ वेरी फेमस. तो उसने क्या किया, संतोष ने उत्तराखंड में जाके नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में उसने एडमिशन ले लिया, एनरोल किया अपने आप को. My college semester in Jaipur was to end in April, but it ended on the 19th of May. तो अप्रैल में एंड होने वाला था, बट फॉर सम ड्यू रीज़न कब एंड हुआ, 19th of May को. क्लियर सुमित, क्लियर? 19th of May. And I was supposed to be back. I was supposed to be in Uttarkashi on the 21st. So I did not go back home. Instead, I headed straight for the training. तो उसने क्या किया, उसको लगा था कि अप्रैल में ख़त्म होगा. ऑब्वियसली कुछ अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल दे वुड हैव टोल्ड, और द अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल ऑफ द एग्ज़ाम इट वॉज सपोज टू गेट ओवर बाई अप्रैल. तो उसने क्या प्लान किया, अप्रैल में ख़त्म होगा, मैं अप्रैल में घर चली जाऊँगी, उसके बाद मई में फिर मैं वापस आ जाऊँगी, और नहीं तो फिर मई में घर से ही मैं उत्तरकाशी चली जाऊँगी, वहाँ पे माउंटेनिंग ख़त्म करके फिर मैं जयपुर आ जाऊँगी वापस. लेकिन उसका एग्ज़ाम ख़त्म कब हुआ, अप्रैल के जगह पे वो ख़त्म हुआ मई में, 19th of May. और उसका उत्तरकाशी जाने का डेट कब था, 21st. तो 21st को उसको उत्तरकाशी में जाना था, तो वो घर वापस नहीं गई. शी डिड नॉट गो टू होम. What she did instead, she directly went to Uttarkashi. So I did not go back home. Instead, I headed straight for the training. तो ट्रेनिंग के लिए उत्तरकाशी चली गई. I had to write a letter of apology to my father, without whose permission I had got myself enrolled at उत्तरकाशी. तो उसने अपने पापा को चिट्ठी लिखा कि पापा आई एम सॉरी, मैं इस बार नहीं आ पाऊँगी, और आपके परमिशन के बगैर ही मैं उत्तरकाशी जा रही हूँ. माउंटेनियरिंग का मुझे शौक है. आई हैव एनरोल्ड माई सेल्फ फॉर सम ट्रेनिंग क्लासेस, सो आई एम गोइंग. तो उसने पापा को वैसा चिट्ठी लिखा. क्लियर ओके. देयर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपीडिशन एवरी ईयर. तो हर साल, उसके बाद हर साल वो जाने लगी. हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली. ऑल्सो शी डेवलप्ड ए रिमार्केबल रेजिस्टेंट टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड. तो हर साल वो जाने लगी धीरे धीरे, और उसके बाद वो उसके अंदर एक रेजिस्टेंस हुआ. यू नो, वी आर नॉट इम्यून टू फेस सीवियर कोल्ड, आर वी? अगर मैं आपको लेके मे बी समवेयर, इफ़ आई टेक यू टू शिमला, यू विल नॉट बी एबल टू टेक दैट cold, that chill, because you will start shivering, you will not be able to take it. बट उसने जैसे जैसे वो ट्रेनिंग लेती गई, उसके अंदर एक रेजिस्टेंस, उसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, जो एक्सेसिव कोल्ड को, और हाइट जो बहुत हाई होता है उसको भी शी कुड नॉट गेट वर्टिगो पता है ना क्या होता है, जब कोई इंसान ऊपर जाता है, सपोज इफ़ यू आर क्लाइंबिंग समथिंग, क्या होता है, यू फील दैट यू फील व्हाट इज़ दैट, गिडीनेस पता है ना क्या होता है, सर चकराता है, ऐसे अभी गिर जाऊंगा जब ऊपर जाते हैं हम लोग, राइट? इफ़ वी क्लाइंब, लाइक इफ़ वी गो टू 25th floor or 30th floor, and if you see down, you will feel that vertigo, right? You will feel that giddiness. तो उसके against में उसको, she was able to she was able to develop a kind of resistance कि उसको कोल्ड भी नहीं लगता था ज़्यादा, और उसको वर्टिगो भी नहीं पता चलता था. मीन्स शी वॉज इम्यून फॉर दैट, शी डेवलप्ड दैट. इक्विप्ड विथ एन आयरन विल. आयरन विल मतलब उसका जो विल पावर है वो आयरन के जैसा था. इट्स सो स्ट्रॉन्ग. फिजिकल एंड्योरेंस एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस. शी प्रूव्ड हर सेल्फ रिपीटेडली. The accumulation of her hard work and sincerity came in 1992, just 4 years after she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them. So when do you think she actually asked them?
1988 में उसने पूछा होगा, बिकॉज 4 ईयर्स उसने 4 साल उसने लिया अपने आप को ट्रेनिंग किया, और 1992 में वो दिन आ गया संतोष mountaineers if she could join them at barely 20 years of age. 20 साल की उम्र में संतोष यादव scaled Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat. If her climbing skills, physical fitness and mental strength impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the hearts of fellow climbers. तो जिसके साथ obviously she does, nobody goes alone to climb Mount Everest because you will have a team of your own. तो जब माउंटेनर्स का टीम होता है ना, तो जब वो लोग गए merely at the age of 20 साल की उम्र में वो क्लाइंब किया माउंट एवरेस्ट, एंड इट्स नॉट ईजी. और जिन लोगों के साथ वो किया, वो लोग उसके बारे में क्या सोचते, दे थिंक दैट वो बहुत अच्छी है बिकॉज शी केयर्स फॉर अदर्स. और उसका टफनेस, उसका मेंटल जो मैच्योरिटी, मेंटल टफनेस, फिजिकल एंड्योरेंस उसका बहुत अच्छा है. मतलब फिजिकली शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, मेंटली शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड शी हैज़ ए वेरी आयरन विल विच इज़ बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर है, जिसके लिए शी थॉट दैट आई कैन डू इट एंड शी डिड इट. और उस फेलो क्लाइंबर्स मतलब उसके साथ जो क्लाइंब करने गए थे, उनके बारे में जो उसका चिंता है कि क्या आर दे डूइंग गुड, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम आई एम देयर. तो हेल्प करने के लिए जो उसका नेचर है, दैट वाज आल्सो समथिंग विच हर फेलो क्लाइंबर्स रिमेंबर्स or talk about. Fine. During the 1992 Everest mission, Santosh Yadav provided special care to a climber who lay dying at South Colonel. She was unfortunately unsuccessful in saving him. तो 1992 में जब वो माउंट एवरेस्ट स्केल कर रही थी, तब उसने टू ए क्लाइंबर, तो कोई जा रहा था, मतलब कोई वहाँ पे फंस गया था और वो मर रहा था. शी ट्राइड हर बेस्ट टू सेव दैट पर्सन बट शी कुड नॉट बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन और समथिंग. शी वॉज अनफॉर्चुनेट अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम. हाउएवर शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर. तो 2 क्लाइंबर के साथ ऐसा हुआ जो मतलब 1 पर्सन डाइड और एक को उसने सेव कर लिया. सो थिंक सेविंग समवन्स लाइफ एट दैट एल्टीट्यूड, इतना ऊंचे में किसी का जान सेव करना, इट्स नॉट दैट, बिकॉज यू योर सेल्फ आर सर्वाइविंग, यू डोंट नो हाउ फार यू कैन सर्वाइव बिकॉज यू डोंट हैव इनफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है. However, she managed to save another climber, Mohan Singh, who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him. तो क्या होता है, वो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेके ऊपर जाते हैं, राइट, बिकॉज यू डोंट गेट इनफ ऑक्सीजन टू ब्रीथ. And that's why your brain stops working, your heart stops functioning, and you will die. But what happened? She shared her oxygen with that person. What was his name? Mohan Singh. अगर मोहन सिंह के साथ शेयर नहीं करती तो मोहन सिंह भी दूसरे क्लाइंबर के जैसा वो भी he would have also died. Within 12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them. तो 1992 में उसने क्या किया, माउंट एवरेस्ट स्केल किया फर्स्ट टाइम. 18 महीने 19 मंथ्स मतलब 1.5 साल से 1 महीने ज़्यादा उसके अंदर फिर इंडो नेपालीज जो और एक एक्सपीडिशन ग्रुप है, उन लोगों ने उसको फिर से इनवाइट किया. किसके लिए? कम लेट्स स्केल माउंट एवरेस्ट वंस मोर. तो उसको इनविटेशन मिला. She then scaled the Everest a second time, thus setting a record as the only woman to have scaled the Mount Everest twice. तो एक बार ही आदमी ऊपर नहीं जा सकता, वो तो 2 बार, वो भी 1.5 साल के अंदर. It's an achievement. It's something which usually if you think it's like impossible, but she has done it. तब उसका एज कितना होगा? 20 years and maybe 21 and a half. She did it once more. And securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering.
In recognition of her achievements, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors for the Padma Shri. तो पद्म श्री मिला उसको, दो बार किया, बिकॉज शी इज़ द यंगेस्ट वन टू डू इट ट्वाइस, और वो भी इंडिया से, पूरे वर्ल्ड में. सो ऑब्वियसली शी डिजर्व, शी प्रूव्ड हर मेटल बीइंग ए गर्ल. Describing her feelings when she was literally on top of the world, Santosh has said, "It took some time for the enormity of the moment to sink in." तो जब वो एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, उसने बोला कि मैं जब ऊपर गई, मुझे थोड़ा टाइम लगा ये समझने के लिए कि मैंने क्या किया. How beautiful, what have I done? Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world. So if you see, Mount Everest is also known as the roof of the world. तो उसने जब अनफ्लर किया, फ्लैग को खोला, तिरंगे को, उसने तिरंगा लहराया. That would be the best moment in any person's life, any citizen's life who is an Indian, right? That is for me also, for you also. We take pride in hoisting our flag, our tricolored flag. The feeling is indescribable. तो ऐसा फीलिंग मुझे, I cannot describe, मुझे ऐसा फील हुआ, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, शब्द में उसको बयान नहीं कर पाऊँगी, ऐसा मुझे फील हुआ. The Indian flag was flying on top of the world. तो इंडियन फ्लैग टॉप ऑफ द वर्ल्ड में फ्लाई कर रहा था. It was truly a spiritual moment. I felt proud as an Indian. Obviously, as I said, she felt proud as an Indian. Also a fervent environmentalist, Santosh collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalayas. तो जब वो उतर रही थी तब उसने क्या किया? She was also an environmentalist, where when she was climbing down, she collected 500 kilograms of garbage and she got it back from the Everest, from the Himalayas, so that the environment doesn't get spoiled. She did her part. She did her bit. So that much is what the part 1 is. Understood?